Hello everyone, welcome back to the LFS online classes. I am your SST teacher. I hope students you all are safe and good at your home. So today we will start our second semester examination syllabus, and our second semester examination syllabus will be start from chapter 8, which is the grasslands and the prairies. So today we will continue we will start our second semester examination syllabus. We will start our chapter 8. So let's open your page number 67. Chapter number is 8 and the chapter name is the grassland and the prairies. So firstly I want to tell you that your second semester examination syllabus will be start from this chapter, means chapter number 8. So you will write all the exercise based questions, whatever you will write on your notebook and book. So you will write properly in your proper handwriting and also leave one page before writing anything in your copy. So let's open your book and start our topic. So our topic is the grasslands and the prairies. So firstly we will discuss about the grassland. So grasslands क्या होते हैं? Grass means मैदान and land means plains. ठीक है? ग्रास मीन्स क्या हो गया? ग्रास मीन्स क्या हो गया? घास. और लैंड मीन्स क्या हो गया? मैदान. मीन्स ग्रासलैंड क्या होते हैं? घास के मैदान. ठीक है? या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है, बहुत बड़ा लार्ज प्लेन होते हैं जो किससे कवर रहते हैं? ग्रासेस से कवर रहते हैं. और ग्रासलैंड्स को ही प्रेरीज कहा जाता है. प्रेरीज का भी मतलब क्या होता है? ग्रासलैंड ही होता है, घास के मैदान ही होते हैं. ठीक है? तो इस चैप्टर में हम किस किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? सो अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लोकेशन, and after location we will study about the wildlife of the prairies, and then life of the people, and our fourth topic is climate and the vegetation, and last one is economic activities. So these are the main topics and these are the important topics of our chapter 8, which is the grassland and the prairies. Is it clear? So firstly we will discuss about the first topic, which is location. Means अब सबसे पहले हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? लोकेशन के बारे में. So firstly I want to tell you about the location of the prairies. Let's open your book and look at this figure carefully. So the yellow portion of this figure shows the grassland and the prairies. So let's look at carefully. सो येलो कलर जो है इस फिगर में वो आपका ग्रासलैंड शो कर रहा है, प्रेरीज शो कर रहा है. सो अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है. सो लुक एट केयरफुली. जो ग्रासलैंड्स हैं वो एशिया में भी मिलते हैं, यूरोप में भी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका. क्लियर? कहाँ कहाँ पे है? एशिया में है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में. प्लीज नोट डाउन दीज इम्पोर्टेंट points on your notebook because it is very important for your self study based question. clear? ये आपसे लोकेशन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि प्रेरीज जो है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं. तो एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, साउथ अमेरिका एंड देन नॉर्थ अमेरिका. क्लियर? So let's open your book. Most of the grasslands of the world are found in the temperate zone. Clear? मतलब लगभग जितने भी ग्रासलैंड हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं वर्ल्ड में? टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं. अब आपको पता होगा कि टेम्परेट जोन कौन सा है. ये लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था. दिस जोन लाइज इन बोथ द हेमिस्फीयर. ये दोनों हेमिस्फीयर में आता है. कौन कौन से दो हेमिस्फीयर है? नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degree north and the Arctic Circle 66.5 degree north, and in the southern hemisphere it lies between the Tropic of Capricorn 23.5 degree south and the Antarctic Circle 66.5 degree south. Clear? ये इसकी लोकेशन बता रखी है कि वो कहाँ से कहाँ पे होता है. मीन्स दोनों हेमिस्फीयर में लाया करता है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी. नॉर्थ पे कहाँ पे लाया करता है, साउथ में कहाँ तक लाया करता है, ये दोनों आपको बताया गया है.
and it is most important for your self study based questions. So please underline these lines with pencil. Grasslands are large plain of grass. ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? ये बड़े बड़े मैदान होते हैं घास के. देयर आर फ्यू ट्रीज एंड बुशेस एज देयर इज लिटिल और नो रेनफॉल देयर. यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत ही कम पेड़ पौधे और बहुत ही कम झाड़ियाँ होती हैं और यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती. ग्रासलैंड्स अबाउंड इन वार्म एंड ड्राई प्लेसेस वेयर देयर इज टू लिटिल रेन फॉर फॉरेस्ट टू ग्रो बट इनफ रेन टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम टर्निंग इनटू अ डेजर्ट. अब क्या कह रहे हैं कि ग्रासलैंड वो वार्म और ड्राई, वो गर्म और सूखी जगह होती है जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, जो इतनी बारिश होती है कि फॉरेस्ट जो है लिटिल रेन फॉर फॉरेस्ट टू ग्रो, कि फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है वो ग्रो कर सके, बट इनफ रेन टू स्टॉप द लैंड. ठीक है, और इतनी कम बारिश होती है कि बस इतनी हो जाती है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो किस में चेंज नहीं हो जा सकती? डेजर्ट में चेंज नहीं हो सकती. मीन्स वहाँ पे अगर आप चाहो वेजिटेशन के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वेजिटेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? रेनफॉल इम्पोर्टेंट होता है. और यहाँ पे रेनफॉल जो है वो आप 0 से कंपेयर कर सकते हो. टर्न योर पेज. In different parts of the world, grasslands are known by different names, such as prairies in North America. अब क्या बता रहा है कि वर्ल्ड के डिफरेंट जगहों पे जो है वो ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज नाम से जाना जाता है, साउथ अमेरिका में पैम्पस नाम से जाना जाता है, यूरोप एंड एशिया में स्टेपस नाम से जाना जाता है, वेल्ड इन साउथ अमेरिका, वेल्ड नाम से साउथ अमेरिका में, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड सामनास इन सेंट्रल अफ्रीका. सो अगर आप इस फिगर में देखिए तो रेड पेन से इसके नेम जो है वो इंडिकेट कर रखे हैं. डाउन्स, सेक्टर्स, प्रेरीज, पैम्पस, एसेट्रा. क्लियर? सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किस जगह की प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे? नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे. प्रेरी क्या होता है? प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड. ये एक कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ही होता है ग्रासलैंड. नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको. और जो नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज है, ग्रासलैंड है, वो कहाँ से कहाँ तक है? कनाडा टू मैक्सिको की तरफ, कनाडा टू मैक्सिको एक्सटेंडेड है. सो आई होप इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक्स of this chapter. So it's time to your homework. So your homework is write the name of the places where prairies is found and also mention the names of prairies in different places. Write down these 8 points on your homework notebook. Thank you so much for watching me. Have a great day.